عمران خان کے کتے مہمانوں کی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھا لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک سنا، عمران خان کے کتے مہمانوں کی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھا کے دوڑ جاتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ بغض عمران رکھنے والے حکومتی صحافی نے کہا ہے۔ فمیر سلامنگ، میں جہاں جہاں عمران خان یا عمران خان کے چاہنے والوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کھل کے بات کرتا ہوں، تنقید کرتا ہوں، لیکن آپ بغض عمران میں یا کسی کے بھی بغض میں اس حد تک نہیں جا سکتے کہ آپ کے پاس دلیل ہونا اور آپ ایویں شوشہ چھوڑ دیں صرف حکومت کے کچھ لوگوں کو پالش کرنے کے لیے، بلکہ کچھ لوگوں کے پالش کرنے کے لیے۔ مطلب کیا دماغ آپ نے پایا ہے؟ آپ اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میں مانتا ہوں عمران خان لان میں بیٹھ کے مہمانوں سے کہتے تھے میں چیف آئیں، کوئی بھی آئے ان کے پاس، اب بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں، وہ لان میں بیٹھ جایا کرتے تھے خاص وقت کے لیے اور مہمانوں کو وہیں جو بھی چائے اور بسکٹ ہوتے تھے وہ سرو کر دیتے تھے۔ ہاں، دور کہیں عمران خان کا کتا بھی پھرتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن مجھے کوئی ایک دلیل بتا دیں جس میں عمران خان کے کتے نے مہمان کی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھایا ہو اور وہ بھاگ گیا ہو۔ مطلب آپ الزام لگاتے ہیں کہ سعودی وفد آیا تو بنی گالا بلا لیا گیا اور اس کا استقبال عمران خان کے ملازموں کے جو تاروں پہ لٹکے ہوئے گندے کپڑوں نے کیا۔ کوئی اس کی دلیل، کوئی مثال؟ اس حد تک عمران خان کے باکس میں مت جائیے جس کی دلیل آپ کے پاس نہ ہو۔ عمران خان پہ بہت سارے الزامات ہو سکتے ہیں، ایشوز ہو سکتے ہیں، بہت سارا گند ہم نے اچھال لیا، آپ نے الزامات لگا دیے، جیل میں بند کر دیا، 997-98 دن ہو گئے، ہم نے مان لیا سارا کچھ۔ یہ سیاست اسی طرح کا کھیل ہے۔ زرداری نے بھی 14 سال جیل کاٹی، نواز شریف بھی جیل میں رہے، شہباز شریف بھی جیل میں رہے، مریم نواز بھی جیل میں رہیں، لیکن عمران خان کا کتے نے مہمان کی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھایا۔ مجھے اس کا ثبوت چاہیے۔ I don't like it. I really don't like it کہ آپ عمران خان کے باکس میں یہاں تک چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے عوام کی پلیٹ میں سے کیا کیا اٹھا لیا؟ ان کا چین، سکون، روٹی، روزگار، سب کچھ ان کی پلیٹ میں سے اٹھا لیا گیا۔ عوام کی پلیٹ بالکل خالی کر دی گئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ اس وقت اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ لوگ حد سے مر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ بھئی آپ کو 8 بجے شاپس بند کرنے کا حکم دے دیا گیا، آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ شاہ عالم مارکیٹ میں 29 دن ہو گئے 200 دکانوں کو تالے لگا دیے گئے۔ عوام کی پلیٹ میں سے جو کچھ اٹھایا جا رہا اس پہ آپ بات کرتے ہیں کیا؟ آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ جتنا بل بجلی کا آتا ہے وہ عوام نہیں افورڈ کر سکتی؟ وہی شہباز شریف وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے بینگ دا اپوزیشن لیڈر کہ اگر ایک بندے کا 20,000 بل آ جائے، اس کی 10,000 تنخواہ ہو، جناب اسپیکر وہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اب جناب اسپیکر کہاں چلا گیا؟ اب وہ اپوزیشن لیڈر کہاں چلا گیا؟ اب تو وہ پرائم منسٹر ہے۔ اب اسے احساس نہیں ہوتا کہ اگر ایک 10,000 والے بندے کا بل جس کی تنخواہ 10,000 ہے 20,000 آتا ہے تو اس پہ کیا قیامت گزرتی ہے، وہ کس طرح اپنا نانو نفقہ چلاتا ہے۔ آپ اس بات کو بھول گئے کہ گیس 400 گنا سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے۔ جس بندے کا بل 150، 200، 250 روپے آتا تھا، اس کا بل 1,800، 2,500، 3,000، 3,500 بل آ رہا۔ کسی نے بات کی عوام کی پلیٹ میں سے گیس بھی اٹھا لی گئی، کسی نے بات کی عوام کی پلیٹ میں سے بجلی بھی اٹھا لی گئی، کسی نے بات کی عوام کی پلیٹ میں سے اس کا سکون، چین، ہر چیز اٹھا لی گئی۔ ہاں، مریم نواز نے میت سروس شروع کی، میں اس کا معترف ہوں۔ It's the right way, it's the right step۔ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، لیکن جو برا ہے آپ اس پہ بات نہیں کر رہے۔ آپ یار وہ اس بندے کو 997 دن جیل میں ہو گئے، آپ ابھی یاد کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے کتے مہمان کی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھا کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ What the hell is going on here? What are you doing? What are you selling to these masoom people? What are you selling to innocent people, yaar?
What are you doing? What kind of journalism is this? जहाँ इमरान खान के चाहने वालों पर वो ना बलद हैं, अभी बच्चे हैं, उन्हें तो समझ अक्ल नहीं है। ओ भाई, आपका 40 साल का सहाफत का तजर्बा है, आप गंदे कपड़े धोने बैठ गए हैं यूट्यूब पे आके, फेसबुक पे आके, सोशल मीडिया पे आके। कितना का बुग़्ज़े इमरान है आपके पास, कितने की दुश्मनी है इमरान खान से आपकी। ओ भाई, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, बात खत्म हो गई, किस्सा पारी ना हो गई। आप ये सवाल क्यों नहीं करते? हाँ, मैं मानता हूं इसहाक डार की सफारतकारी अच्छी है, हमें पाकिस्तान के लिए बात करनी चाहिए। मैं मानता हूं पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी, बहुत अच्छी बात है। इस्लामाबाद में ट्रंप ने कहा है, मैं दोबारा आ रहा हूं, इज राइट वे। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब एक शख्स जो है वो पिछले 997 दिन से 98 दिन से जेल में है, आपको वो भूल ही नहीं रहा, आप बिलावजह अपने गंदे कपड़े धोने आ गए हैं। तो दिस इज नॉट राइट वे टू गो। अब आते हैं अच्छी खबर। अच्छा, मरियम नवाज की मैयत सर्विस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बल्कि उससे पहले एक और चीज, मैं बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे दूं। आप कहते हैं ना कि इमरान खान के कुत्ते मेहमानों की प्लेट से बिस्किट उठा के भाग जाया करते थे। जनाब, रोजगार की लोगों की यही सूरत हाल है, आवाम की प्लेट से रोजगार इस तरह उठा लिया गया है। मैंने सब्जी वाले से पूछा कि वो जो आमतौर पे सब्जी का रेट होता है ना, उससे सस्ती, बहुत सस्ती सब्जी बेच रहा था, सब्जी भी बहुत अच्छी थी। मैंने उससे पूछा कि आप इतनी सस्ती सब्जी क्यों बेच रहे हैं? उसने पता क्या कहा? सर, गांव में फौतगी हो गई है, तो वहां भाई को दफनाने के लिए, ना जाने के लिए हमारे पास किराया है, ना दफनाने के लिए पैसे हैं, कफन दफन के लिए पैसे नहीं है। ये है ग्राउंड रियलिटी ऑफ द पीपल, ये हालात हैं लोगों के। और आप ये कह रहे हैं कि अभी भी इमरान खान पे बात की जाए। भाई, मुआशरत पे बात की जाए, भाई लोगों को रोजगार देने पे बात की जाए, भाई बिजली सस्ती करने पे बात की जाए, भाई गैस सस्ती करने पे बात की जाए, भाई बच्चों के, लोगों के बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं पे हो रही, उस पर बात की जाए, भाई फ्री तालीम की बात की जाए, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, भाई पाकिस्तान में चीजें बना के बाहर भेजने की बात की जाए, भाई पाकिस्तान की जो बरामदात बढ़ाने की बात की जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात की जाए, पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़े होने की बात की जाए। अब बात करें इमरान खान के जो कुत्ते हैं, वो प्लेट से बिस्किट उठा के भाग जाया करते थे। अब देखें अब क्या इश्यूज हैं। छोड़ दें यार ये फजूल कहानियों को, छोड़ दें यार ये मंजन बेचना। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, अब इमरान खान की जान छोड़ दें, इस अवाम की जान छोड़ दें। अब ये देखें कि अब इश्यूज क्या हैं, कोर इश्यूज क्या हैं हमारे। कोर इशू इज सस्ती बिजली होनी चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए, बच्चों की स्कूल की फीस का इंतजाम होना चाहिए, सरकारी सतह पे बच्चों को एक स्किलफुल तालीम दी जाए। कोई बात ही नहीं कर रहा, वो एक किताब में रट्टे लगवाए जा रहे हैं, बेरोजगार लोग मार्केट में भेजे जा रहे हैं, धड़न तख्ता सिस्टम का। भाई, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए इस दौर में, जब थोड़ी बहुत आईटी जोर पकड़ रही है, बूम पकड़ रही है। आप बिजली बंद करके, इंटरनेट बंद करके, इंटरनेट किसी कंपनी का आता ही नहीं है, इस पे बात ही नहीं कर रहे आप। हाँ, अब आते हैं वो सब्जी वाला बेचारा, सस्ती सब्जी बेच के वो अपने भाई की मैयत को दफनाने के लिए किराया इकट्ठे कर रहा है, उसकी तजहीज़ो तकफीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। ये है। तो जब ये सूरत हाल देखते हैं तो फिर मरियम नवाज जब मैयत सर्विस शुरू करती हैं तो मैं कहता हूं कि अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज मैंने 2020 में अपने वालिद को जब CMH MH पिंडी से लाहौर लेके आना था, मुझे पता है 2020 में 30,000 की एम्बुलेंस मुझे मिली थी। उस वक्त जब आपका वालिद 2-3 महीनों के लिए हॉस्पिटल में बीमार हो या महीने के लिए हॉस्पिटल में बीमार हो, आपकी सारी जमा पूंजी वहां लग रही हो, आपका पूरा खानदान वहां बैठा हुआ हो महीने से, उसके बाद पता चले कि आपने अपनी मैयत को या अपने नीम मुर्दा मैयत को किसी और हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, उसके लिए आपको 30,000 रुपए देने हैं, तो एक मुश्किल वक्त होता है। मरियम नवाज का ये कदम अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। और इसमें प्रॉब्लम ये है, क्या ये लोगों तक पहुंचेगा? क्या ये साफ शफाफ अंदाज बाइज्जत तरीके से
बाइज्जत बंदा तो अपनी जेब भी नहीं दिखा सकता किसी को। बाइज्जत तरीके से क्या लोगों की मैयत उनके घरों तक या हॉस्पिटल तक जहां उन्हें रेफर किया जाता है वो पहुंच जाएगी? तो बहुत मुश्किल चीज है। अब आते हैं जी ट्रंप की तरफ। ट्रंप कह रहा है जी सहाफियों इस्लामाबाद में बैठो, 2 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां काबिल गौर बात यह है कि मशरिक़ वस्ता में 1400 नए सबमरीन जो फौजी हैं जो समंदर में काम कर सकते हैं, वो क्या करने आए हैं? अमेरिका के तैयारे इतनी बड़ी तादाद में, आबदोज़ें इतनी बड़ी तादाद में मशरिक़ वस्ता में क्या करने आ रही हैं, ये काबिल गौर बात है। जहां ट्रंप ये कह रहा है 2 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है, इस्लामाबाद में रुकिए, वहां ट्रंप अपना जंगी साजो सामान वो मशरिक़ वस्ता में भेज रहा है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। मैं बार बार कहता हूं, मुझे पता है ट्रंप में इतना जिगरा नहीं है, इतना दिल नहीं है, इतनी स्पाइन नहीं है, इतना गुर्दा नहीं है, इतने मसल्स नहीं है कि वो अब मजीद लड़ सके। ट्रंप खुद कह चुका है मैं जंग बंद कर चुका हूं। बट ट्रंप ट्राई करेगा, किसी तरह से कोई सहारा मिल गया तो एक दफा वो कहेगा भाई मैं जीत चुका हूं। सिर्फ अपनी जीत साबित करने के लिए खुदा न खास्ता दोबारा आग और खून की होली खेली जा सकती है। जितना साजो सामान पिछले 1-1.5 दिन में अमेरिका यहां भेज चुका है मशरिक़ वस्ता में, वो बहुत अलार्मिंग है। वी नीड टू ऑब्जर्व इट वेरी कीनली। एट द सेम टाइम पाकिस्तान इज वेरी विजिलेंट। पाकिस्तान हर तरह से दुनिया की खिदमत करने के लिए तैयार है। हमारा वेन्यू हाजिर है। हम नेक नियति से ईरान और अमेरिका की सुलह चाहते हैं। हम नेक नियति से इसराइल के साथ जो भी मामलात हैं उन्हें तय करना चाहते हैं। लेकिन तकलीफ और दुख की बात यह है कि भारत इस वक्त भी टिकने को तैयार नहीं। मेजर गौरव आर्या, जो भी उस कुत्ते का नाम है, वो बबांगे दोहल कह रहा है खुदा ना खास्ता मुझे ईरान में ना कभी रजीम पसंद आई है और मैं ये चाहता हूं कि इसराइल 100 बम भेजे लबनान पर फायर करे और 50 बम गजा पर फायर करे। ये इतने इंसान दुश्मन लोग हैं, ये इतने जालिम लोग हैं। भारत से इस रिटायर्ड मेजर ने वो जहर उगला है और कहा है कि हम तो भाई हैं, हम अच्छे दोस्त नहीं, हम तो सगे भाई हैं। मतलब जब भारत में इतना गंद होगा। और भारत से एक और खबर है, ट्रंप को 50 मिनट की कॉल की है नरेंद्र मोदी ने। 50 मिनट की कॉल, और 50 मिनट की कॉल में खी बस। इसके अलावा उसे हिंदी नहीं आती थी, इसे अंग्रेजी नहीं आती थी, बस खी करते रहे, कोई बात नहीं हुई। 50 मिनट की कॉल जो है वो स्प्रेड कर दी सोशल मीडिया पे, ये देखिए नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात की है। और नरेंद्र मोदी ने ऑफर किया है कि जो ईरान में यूरेनियम है वो भारत के पास रखवा दिया जाए। भाई आपको तो कुछ जुतियां नहीं मारता, आपके पास वो अपना यूरेनियम, अफजूदा यूरेनियम क्यों रखवाएगा? तो ये इस सियासत को ना समझने की जरूरत है। आलमी सियासत और मुल्क की सियासत दोनों अजीब अजीब तरह के पैंतरे बदल रहे हैं। लेकिन ज़हन में रखिएगा, आप जब हुकूमती सहाफ़ी बन के बात करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है। आप जब भारत के मेजर वो गौरव आर्या से कह रहा हूं कि जब आप इंसान दुश्मन बन के बात करते हैं तो दुनिया समझ जाती है। दुनिया अब हर चीज़ को परख रही है। और मैं वो नज़ीर अकबर आबादी की वो नज़म का एक शेर था ना, कल युग नहीं कर युग है ये, या दिन को दे रात ले, क्या खूब सौदा नकद है साथ दे साथ ले। अगर आप इंसान दुश्मन है ना, आप कहते हैं लबनान पे 100 बम, मैं तो कहता हूं इसराइल फेंके और गजा पे 50 बम फेंके, तो आप ज़हन में रखिएगा मकाफात अमल है। आप पे पता नहीं फिर 150-200 इकट्ठा बम आएगा, आप भी बच नहीं पाएंगे। एनीवेज, मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान बल्कि दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों की खैर करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान बनाए। सिर्फ
किताबों की हद तक, सिर्फ सफ़ात की हद तक पाकिस्तान तरक्की ना करे, बल्कि इन रियल सेंस पाकिस्तान तरक्की करे। आप इन तमाम ख़बरों के हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।